ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ, ਦੇਵਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, सीमा सुधीर, अनुराधा प्रभाकर, संजीव प्रभाकर, ईशान प्रभाकर, प्रीशा प्रभाकर, मारीशा प्रभाकर, सीए निखिल शर्मा, मयूर धवज भारद्वाज, जजत भारद्वाज, जतिका देवस्य, विवान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਦੀ ਮੱਠ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। श्रीमती राम दुलारी जी का जन्म पिता श्री संसार चंद जी दे घर माता श्रीमती लाजवंती जी दी कुखों पाकिस्तान विखे 1 मार्च 1940 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1958 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਚੰਗਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇਜਸਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ, ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ, ਸੀਮਾ ਸੁਧੀਰ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਤਦੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਐਕਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ, एक्स प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब श्री अविनाश राय खन्ना, गौ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय खुराना, सोम प्रकाश, बलविंदर सिंह धालीवाल, सरवन सिंह कुलार मैंबर SGPC, जरनैल सिंह चेयर मार्कफेड तो इलावा ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਜਤ, ਜਤਿਕਾ, ਦੇਵਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
बीजाक्षर महाशक्ति को राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र अंतर बीज परात्पर अंतर बीजाक्षर पद पदम प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडलनी बोधे सुषुम्न खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे हाथ सहज बहुभान अज पाचा भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जगी रमावे राम नाम जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जपिया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई हे पुराण मुनि जन गाई जति सति साधु संत सियाने राम नाम निश दिन बखाने तापसी योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम नाम सब सुख कर भावना भक्ति भरे भजनी करते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साथ समाते देव देवी गण जय विधाता राम राम भजते गण जाता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान साथ सरस संग साधन पान गोपक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह कुमद बेताल मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जप का मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम राम जप सत्य निधान सत्य मुलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम बसारी बीज से तनु मकुली से तार हुआ जो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप पिता राम नाम बिना मिथा विकार धन धान्य सुख
पतित अधम देता राम कृपा दिन रात राम कृपा करे सब कुछ पार राम कृपा ले अंत संभार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्च योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन कर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुबह राम कृपा कह पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में ठोकर ली जैसे जल में हो बीन अधीन राम कृपा भरपूर न पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे इसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देवी काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम ते रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम गुण ध्यान से सब शुभ जाते जा साधु में राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण देवताल कर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा फल मुँह तेरा ये टेर चरण पड़ेगी रखियो में अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम
कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ओंकारं विष्णु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अहं ब्रह्मा परं धाम ब्रह्मं परमं पदम् एवं समीक्षे चात्मनीश्वरे। तो इस गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए भगवान कहते हैं जो ओम का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और मान मोह से रहित संग दोष को जीते हुए कामनाओं से निवृत्त सुख दुख संज्ञा वाले द्वंद्वों से छूटे हुए कहते हैं ज्ञानी मनुष्य उस नाश रहित पद को प्राप्त कर लेते हैं जिस पद का कभी नाश नहीं होता। और जो दृढ़ वैराग्य को धारण करके मुझे अनंत भाव से भजते हैं वह पूर्ण दृष्टि में प्रसन्नात्मा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और हे गरुड़ ये सनातन मोक्ष का धर्म मैंने तुमसे कह दिया है। ज्ञान वैराग्य पुरुष इसको सुनकर के मुक्त हो जाते हैं और तत्व के जानने वाले मुक्ति को प्राप्त होते हैं। धर्म करने वाले जो है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों से सब शास्त्रों का सार निकाल करके तुमसे कह दिया है। तो सूत जी कहते हैं कि हे राजन इस प्रकार गरुड़ जी भगवान के मुखारविंद से वचनों को सुनकर के हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान हे देवेश हे नाथ हे प्रभु आपने अमृत रूपी वचन सुना करके मुझे भवसागर से उतार दिया है और मैं अब संदेह से रहित हो गया हूँ कृतार्थ हो गया हूँ इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार गरुड़ जी चुपचाप होकर के बैठ गए और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए। कहते हैं जिनका स्मरण करने से जो दुर्गति को हरने वाले हैं और पूजन यज्ञ करने से उत्तम गति को देने वाले हैं और वह भगवान मेरी रक्षा करें। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ इस प्रकार मैंने मरने के पश्चात का सब कर्तव्य कर्म कह दिया है। 10 दिन के भीतर इसको सुनने से वह सब पाप से छूट जाते हैं और परलोक के लिए किया हुआ एक कर्म पितरों को जो है मुक्ति देने वाला है और जो करने वाला पुत्र है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस लोक में और परलोक में वह सुख से रहता है और उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं, पुत्र संतान वाला होता है। तो इस प्रकार यह पिंडदान और श्राद्ध और तर्पण की क्रिया को करने के बाद जो है जो संतान वाला वो पुत्र बनता है, धनवान होता है और वह पातक से छूट जाता है। उसके बाद श्रोता को चाहिए कि पुराण को बांचने के वाले के बाद इस पुराण की और बांचने वाले की पूजा करनी चाहिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, उसके माता पिता अवश्य हो जाते हैं। तो इति श्री गरुड़ पुराणे सरोद्वारे 16वां अध्याय संपूर्ण गुरु श्री हरे नमः। हम और आप सभी परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। समय बड़ा सीमित है, मन
समय की मर्यादा जो है उसका पालन करना है सभी ने। ठीक 3 बजे शोक सभा को हमने विराम दे देना है। इसलिए मेरी सभी वक्ताओं के श्री चरणों में प्रार्थना है, समय का ध्यान रखते हुए 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय श्री महाराज जी जो पत्नी मठ से हमारे बीच में विराजमान है और भगवाना नगर का इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कृपया 5 मिनट के लिए और अपनी वाणी से उनको बर्दाश्त करें। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी। स्वर्गीय माता जी को माइक थोड़ा सा सही करो, माइक। अभी 4-5 दिन पहले तेजस्वी जी भारद्वाज जी का फोन गया कि माता जी पूरी हो गई। सुन करके बड़ा दुख हुआ। माता जी का इस शरीर के ऊपर बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार था। मैं जब काशी जी कहीं भी जाता था, बद्री मठ से गंगा के पास है, माता जी कहते थे स्वामी जी जब भी आप आओ, रात सवेरे जब भी आओ। कई बार मैं घर में रुका तेजस्वी जी के, माता जी बहुत सेवा करते थे, बच्चे के जैसे इनका प्यार रहा। आज हमारे बीच में नहीं है और सारा परिवार इनका इतना महाराज श्री जी का भक्त रहा, हमारे गुरुदेव जी का, और वही स्नेह वही प्यार अभी तक तेजस्वी जी का भी हमारे ऊपर है। मैं माता जी को एक भजन, क्योंकि आज के प्रासंगिक जो अवसर है उसी के ऊपर है ये, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। माने इस मनुष्य शरीर में अब यदि हमने कुछ नहीं किया तो और शरीरों में क्या कर पाएंगे, वही है इस भजन में। अब ना बने तो फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी। शर्मा जी ये राग चारुकेशी में है ये। नरतन बार बार नहीं मिलता, नरतन बार बार नहीं मिलता, फिर जननी नहीं जनेगी, अब न बने तो फिर न बनेगी। हरि गुण गाय परामद सले, हरि गुण गाय परामद सले, फिर तेरे नहीं तान तनेगी, अब न बने तो फिर न बनेगी। लख 84 लख 84 जाय पड़ोगे, लख 84 जाय पड़ोगे, फिर यम से रार ठनेगी, अब न बने तो फिर
मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। अब इसी के ऊपर यदि व्याख्या करें तो घंटों बोला जा सकता है। समय का अभाव और भी बहुत से महानुभाव यहाँ पर अपने विचार अभिव्यक्ति, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो सबको समय थोड़ा थोड़ा मिलेगा। मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हुआ आगे का जो भी कार्यक्रम है, क्योंकि महाराज शरीर से हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद जूना पीठाधीश्वर इस नगर के एक प्राण थे और यहाँ की जनता अभी भी अपने हृदय में, अपने प्राणों में उनको समाये हुए हैं, बसाए हुए हैं। और मैं तो यहाँ जब पद्दीमठ में नहीं था उसके पहले से इस नगर में आता हूँ। पंजाब में बहुत बार आया हूँ फगवाड़ा में, और किन किन का नाम लूँ, किन का छोड़ूँ, सब महाराज श्री जी के कृपा पात्र हैं। विशेष करके भारद्वाज जी, उनका परिवार, आज माता जी जहाँ भी है, भगवान ईश्वर उनको अपने चरणों में सद्गति दे और परिवार के ऊपर दया, अपनी भक्ति, अपनी कृपा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी वक्तव्य के साथ वाणी को विराम देता हुआ यहीं पर ओम ओम ओम। मैं आप सबकी सेवा में पुनः एक निवेदन करूँगा। समय सीमित है, इसलिए शायद मैं भी कोई बोल न सकूँ, क्योंकि हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्री विजय सांपला जी, जो कि यहाँ से और सांसद रहे हैं, मेरे भाई श्री विजय खुराना जी दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं, और हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर बलदेव चावला जी, जो हमारे पंजाब के अंदर स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और अनेक पदों पर सुशोभित होकर संगठन का कार्य करते रहे हैं। तो मैं इन सबसे एक निवेदन करूंगा कि कृपया सभी, कृपया 2-3 मिनट से ऊपर कृपया सामान आ लें। ये मेरी आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना है। सर्वप्रथम है श्री विजय खुराना जी, जो हमारे बहुत ही परिवार के सदस्य हैं, उनकी सेवा में निवेदन कृपया 2 मिनट के लिए, और आकर पूज्य माता जी के प्रति 2 शब्द भी। आज के दिन 50 वर्ष पूर्व संघ का प्रचारक मैं यहाँ फगवाड़ा में आया था। डॉक्टर जोगिंदर जी थे उस समय यहाँ जिला कार्यवाह। तब से आज तक फगवाड़ा के बंधुओं से जीवंत संपर्क है, जिंदा संपर्क है। तेजस्विनी जी भारद्वाज अनमैनेजेबल, अनपरचेजेबल, आने वाला समय जो इन्होंने काम किया है अभी 6 महीने पहले, पूरा देश याद करेगा, पूरा गोभक्त याद करेगा, पूरा देश की गौशाला याद करेगी। इस देश की जो इकोनॉमिक पटरी, अर्थव्यवस्था जो होने जा रही है, उसमें भारद्वाज जी का कितना रोल है। जितना जंगल बचे है, गाय के गोबर की लकड़ी, बेरोजगारी, एक IIT ने मशीन बनाई थी, गाय के गोबर की लकड़ी, 9.5 लाख टन गाय का गोबर जो मिट्टी में कूड़े में जाता था, एक मशीन बनाई गई है। लुधियाना यूनिवर्सिटी, लुधियाना MIT डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने वो मशीन को पास किया है। उस मशीन को पास करने का सबसे बड़ा अहम रोल कोऑर्डिनेटर बोलते जो श्री भारद्वाज जी थे। इन्होंने वो मशीन पास कराकर केंद्र में भिजवाई। 100 करोड़ रुपया केंद्र ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पूरे देश में उस मशीन के ऊपर सब्सिडी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी संस्कार माता पिता के आते हैं, केवल उसको समाज और संगठन करता है। वही माँ को आज प्रणाम है।
जिस माँ ने ऐसा लाल, ऐसा अनपरचेसेबल, अनमैनेजेबल पुत्र रत्न इस देश को दिया है, आज उसकी माता जी के चरणों में मेरी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसी पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। पूज्य माता जी एक आदर्श भारतीय नारी से अपने सवेत प्रातः काल उठना, स्नान करना, फिर प्रभु की दीन हो जाना, फिर आए गए का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझते थे। मैं एक गल जरूर तेरे सामने कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तुझे सुन रही सी जिले पंजाब के अंदर आतंकवाद चलिया सी, साढ़े भारद्वाज जी जिन्हें उन्होंने पुत्र सन, मेरे नाम कंधे नाल कंधा मिला करके लगभग 13 वर्ष चल रहे थे। उस समय से बोल नहीं सकते हैं कि जेड़ा भी व्यक्ति मेरे नाल चलता सी, वो 2-4 दिन के अंदर उन्होंने पता लगता सी तो उन्होंने गोली का निशाना बनाया जा सकता। पर तेजस्वी भारद्वाज जी इस गल को भूल गए सन। वो एक गल कह रहे सन कि अगर गोली जो बनी हो मेरे वास्ते बनी है और किसी वास्ते नहीं बनी है। मैं इन्हें श्रद्धा देना पूज्य माता जी को हृदय तो श्रद्धांजलि देना और परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करना उन्होंने अपने चरणा चुनाव से जय श्री राम। सरदार तलवंत सिंह जी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज, उनकी ओर से परिवार को विशेष संदेश हमारे बीच में श्री मनोरंजन कालिया जी जालंधर से विशेष रूप से बता रहे हैं। श्री अविनाश जी और वो भी विराजमान है, मैं सबका और यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सबके श्री चरणों में प्रार्थना करके मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि समय पर हमने समाप्त करना है। तो मैं प्रार्थना करूँगा आप सबकी ओर से हमारे श्री विजय सापड़ा जी, जिनके इस परिवार के साथ, तेजस्वी के साथ बहुत ही और घनिष्ठ प्रकार संबंध हैं, तो प्रार्थना करूँगा समय याद रखते हुए 2 मिनट के लिए संवेदना व्यक्त करेंगे अविनाश जी और उसके बाद मेरे भाई साहब अपने चरणों से वास्ते में और परिवार को पाना मना बात बख्शा। पर मैं गल को शेयर करना चाहना कि जो भी मैं तेजस्वी को मिलिया, मैं जो ट्रेन इतों फड़नी होती सी तो सवेरे इन्होंने फोन करना कि मैं ट्रेन फड़नी है, 2 मिनट इतने सैर करना जी। तो जे असी 15 मिनट मिलते सी तो 15 मिनट ही माता जी की गल होती सी कि सवेरे मैं चाह दे के जी MH1 से आरती आती है माता वैष्णो देवी की, वो लगा के जो आरती खत्म होनी है फिर मैं जाके नाश्ता माता जी देना। मतलब एक इस ढंग की सेवा मैं इस करके कह रहा कि मैं एक प्रोग्राम शुरू किया है, सांभ लो मापे रब तो मिल जू आपे। सानू परिवार लभने औखे हो गए ने ਜਿਹੜੇ अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं उन्होंने सम्मानित करते। सो मैं समझदा तेजस्वी जी ने अपने जीवन च वो कर्ज दान की कोशिश की है माता का, और बाकियों वास्ते भी एक संदेश है कि किस ढंग माता पिता की सेवा करनी है। मैं समझदा ये जी अज शोक सभा नहीं है, अज ये प्रेरणा सभा है कि किद्दां असीं प्रेरणा माँ बाप की सेवा की लैके जाते हैं। मैं इन्नी बेनती करता हुआ गुरु के चरणों च पूरी फिर निवेदन करते हैं कि पिछड़ी हुई आत्मा अपने चरणों च वास रहे और इस परिवार को पाना मनना का बल बख्शे। ओम शांति। पंकज भारद्वाज हम अपने चाही जी कि रसम पगड़ी समारोह में शामिल नहीं हो सके। हम जानते हैं कि वह आपकी माँ थी, लेकिन वह हमारे लिए माँ से कम नहीं थी। उन्होंने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अविस्मरणीय और याद कर सब क्षण जो हमारे दिलों में हैं उन्हें समझाना मुश्किल है। हम सभी के दिलों में आपके और पंकज के लिए प्यार है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि आप पहले से कोई कमी ना हो, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आने वाले के समय के लिए भी ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। मैं परम आदरणीय सापला जी के श्री चरणों में प्रार्थना करूँगा कि वो परिवार को 2 शब्द संवेदना के और आप सभी आए हुए भाई बहनों का धन्यवाद। और जिस तरह कि पहला सारे ने दसिया
कि श्री भारद्वाज जी का माता पिता के प्रति उन्होंने की संस्कार है, सब श्रद्धा रही है और ये उस श्रद्धा का भाव भी कह सकते हैं, उस माता पिता का संस्कार ही कह सकते हैं कि श्री भारद्वाज जी ने समाज की सेवा की थी और अपने माँ बाप की भी सेवा। उस समय पर ना असी इसी सभा के कृष्ण दर्शन का मुख्यमंत्री अंतिम अरदास से सारे शामिल हुए थे और उदो भी सारे ने बहुत बड़े अपने भाव सारे व्यक्त किए थे और फिर असं भारद्वाज वाले नेता के सारे जानते हैं कि अक्सर जो भी बैठे रहते फुवाड़े आने अक्सर बैठते हैं, पर जो समय होना है तो तेजस्वी भारद्वाज जी ने उधर चले जाना तो पूछना क्यों कि माता जी को खाना खिलाना है, माता जी का न्याय करना है, माता जी का करना भाव उन्होंने अपना कर्तव्य माता पिता के प्रति वो की श्रद्धा होनी चाहिए है, वो सारे कर्तव्यों को जान और उन्होंने नाल जो समाजिक जिम्मेवारियों भी उन्होंने निभाया। और क्योंकि मैं राजनीति में काफ़ी लंबे समय तो इस परिवार के नाल जुड़े हैं कि कभी भी किसी ने भी किसी को भी तेजस्वी ने कोई राजनीतिक अपने कुछ अलग होगी विचारधारा अलग होगी, पर किसी ने भी इन्होंने जीवन के व्यक्तिगत रूप से कभी कोई उंगली नहीं चुकी। इसका कारण जो है बहुत बड़ा उस माता पिता का आशीर्वाद है और बहुत सारे क्योंकि सारे आए हो चल के बड़ा धन्यवाद क्योंकि दुख कटाउन देना जो साझा करते हैं तो दुख घटता है, खुशी साझी करते तो खुशी बढ़ती है और तुम सारे अज इस परिवार के नाल दुख साझा करके उन्होंने दुख को घटाने के लिए बहुत सारे लोगों का बहुत सारे इतने साड़ी महान हस्तियों और भी बोलन रह गए मनोरंजन डालिया जी ने, मदन जी ने, जगन्नाथ सिंह जी ने, रंजीत खन्ना जी, ऐसे बहुत सारे मनमोहन सिंह जी भी बहुत सारे का होर का भी बहुत सारे का जल्द फोन के इस परिवार के नाल अपनी सांस साझी करनी चाहते होंगे, उन्होंने माता जी के चरणों का अपनी श्रद्धा पूर्ण करनी चाहते होंगे, समय के भाव नहीं कर पा सकी, पर फिर भी मैं सारे का जितना सारे का अंदर तन गई तो दिलों अपना सारा धन्यवाद करना उत्थे नाल ही अपने वालों भी बेनती करांगा कि जिस तरह पहला तो उसी इस परिवार के नाल आशीर्वाद देंदे हैं भविख के नाल भी भविख के इस परिवार के नाल वो साझियां हम जी वो साझ बना के रखना और आशीर्वाद हमेशा इन्होंने से रखना। शांति ओम शांति। पंडित रामविलास जी इस परिवार के मुखिया और इस परिवार का बहुत ही और सुंदर समय रहा है। हमारे बीच में अभी अरुण जी आए और हमारे श्री सोमविलास जी